Good evening, everyone present over here. Good evening. Thank you so much for joining all the audience, whoever has joined us to learn more and more in today's session. I, Pooja, welcome all of you in our AIF State Webinar Series, TechnoFest Celebration. Dear audience, in this webinar, we are going to celebrate the technical tool learning. Yes. This COVID-19 has taught us many of the things. बहुत कुछ सिखाया है. बहुत सारे टीचर्स ने ये सीख लिया कि लैपटॉप के कितने सारे functional tools हैं जो हमें पता नहीं, but we have learned how to use them. There are many of the tools which we have started using in our teaching pedagogies as well. So not only this, there were many of the apps which have come into existence in the knowledge of the teachers. कितनी लर्निंग कितना सिनेरियो हमारे एग्जिस्टेंस में आया है, हमारी टीचिंग फील्ड में आया है, एंड आई गेस दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ COVID-19 for all of us. So taking all those learnings and with the motive to pass on all that information to our audience through this AIF State Webinar Series, that is All India Educator Forum State Webinar Series, we welcome you all over here. So today, Mr. Vikas, he has joined us from Lucknow. Mr. Vikas, we are welcoming you that you have spared your time and joined us, joined our invitation. So Mr. Vikas, if I just introduce to all of you with him, he is an AIF resource person. He's state academic resource person too. Vikramshila Education Resource Society, this is the place where he belongs to. And as I already told you that he has joined us from Lucknow, UP. Vikas sir, thank you once again so much. Vikas sir, आज हमारे लिए tools लेके आए हैं. That is majorly it's Cogler and Padlet. We have learned a lot about Padlet in many of the webinars, but Cogler is also one of the new thing. And today Vikas sir is going to tell us that how Padlet also can be used in a more creative and innovative manner. So I hope our audience will join in the interaction sessions and will certainly answer whatever the questions will be asked from our resource person. As we are saying that this is our state webinar, so हमारे resource person, he will be using a little bit Hindi and English, the bilingual language. So Vikas sir, over to you. We are ready to learn in today's session. Thank you very much. First of all, I would like to my heartful thanks to AIF, to Matthew sir and to Pooja ma'am to given this opportunity to share my learning with my colleagues teachers. तो जैसे कि हमारा मॉड्यूल का थीम है टेक्नोफेस्ट, तो आप डेली कुछ ना कुछ नए सीख भी रहे हैं. जैसे भी फर्स्ट में हमने पावर पॉइंट की कुछ स्लाइड्स के बारे में कुछ इनोवेशन तरीके से रेखा मैम ने बड़े अच्छे से बताया. आज जो हम सीखने जा रहे हैं तो मैं उसका आप लोगों को लेके चलता हूं. आज के सेशन का ब्रीफ कर देता हूं कि आज का सेशन हम कैसे कैसे करेंगे. पर उससे पहले आप लोग अभी किसी और काम में बिजी होंगे और कहीं आप जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप माइंड से, फिजिकली तो आपने ज्वाइन कर लिया है, मेरे साथ जुड़ जाएं. हम पहले करते हैं माइंडफुलनेस के लिए एक्टिविटी, फिर हम आपको इस सेशन की जर्नी पे मैं आपको ले चलूंगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं इतना इन बिटवीन स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ अपनी. My screen is visible to all? Yes sir. Yes sir. Okay, thank you. तो माइंडफुलनेस एक्टिविटी में आप सबको रोज का फ्लावर्स, रोज का प्लांट सबने देखा होगा, विजुलाइज करना है. तो आप लोगों ने विजुलाइज करना, जैसे जैसे मेरे साथ चलते रहना है. तो सोचो एक रोज है ब्यूटीफुल रेड कलर का, उसमें लीव्स भी हैं, उसमें उसकी नीचे की बड भी है और एक ग्रीन कलर की टंगा हुआ है. तो आप रोज कलर को हिलता हुआ देख पा रहे हैं. जब आप रोज कलर को देख रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आप आज आपके साथ अच्छा क्या हुआ. कुछ तो अच्छा हुआ होगा स्कूल में, घर में, जिससे आपको गुड फीलिंग आई हो, जिसका आपको एनर्जी मिली हो. फील करना है, सिर्फ अपने मन में सोचना है. फिर आप फ्लावर को विजुअलाइज करते हुए सोचिए, बर्ड के ऊपर सोचिए कि आप क्या अच्छा पाने वाले हो, क्या करने वाले हो इन कमिंग लाइफ, इन कमिंग डे. थिंक कीजिए. कर लिया हो तो अब हम लोग रोज और बट पे तो सोच लेते हैं. एक जो इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की, थ्रोन है ना, थोर्न जो है, कांटा जो है, उस कांटे को भी सोचिए. कुछ गलती हुई थी कि आज
रिफ्लेक्ट कीजिए, कुछ जो आपको ऐसा कि हाँ और अच्छा कर सकते थे और बेहतर कर सकते थे, पर आज वहां थोड़ी चूक हो गई। तो अब जाके कंप्लीट हुआ है कि आपने क्या अच्छा सोचा, क्या अच्छा किया, क्या आप अच्छा करने वाले हैं, और कुछ जो कमियां थी तो हम इन कमियों को छोड़ देते हैं। एक्चुअली ये मिस्टेक्स हमारी अपकमिंग जर्नी, अपकमिंग लर्निंग के लिए बेस तैयार कर रही होती है। अगर आपने सोच लिया है तो आप 3 बार डीप ब्रेथ लेंगे मेरे साथ। 1, 2, 3। थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए, मेरे साथ बियर करने के लिए। आप सोच देंगे टेक्नो फेस्ट है, शुरुआत ऐसे क्यों की? कि मैं चाह रहा था कि जो मैं आपके साथ टूल शेयर करना चाह रहा हूँ आज, पैडलेट, कोगल, और इस साथ में कि कैसे हम इवोल्यूट कर पाए, क्योंकि आजकल बड़ा चैलेंज ये है, ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप देखेंगे टूल्स की भरमार होती जा रही है, कुछ पेड है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई सजेस्ट कर रहा है, हर एक के पास सजेशन है कि ये यूज करें, ये यूज करें। तो एज ए स्मार्ट टीचर, या स्मार्ट की जगह मैं चेंज करता हूं डिजिटल टीचर आजकल आपके लिए। बट तो अगर आप डिजिटल टीचर हैं तो आप कौन सा वो टूल हो जो ऑप्टिमम, जो आपकी रिक्वायरमेंट को यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करूंगा, पर वो बिल्कुल लास्ट में शेयर करूंगा मैं सेशन के एंड में, क्योंकि वो क्या क्राइटेरिया हो जिसमें हम जज कर पाएंगे कि ये टूल हमारी क्लास के लिए, उस क्राइटेरिया पे चेकलिस्ट करेंगे, इंडिकेटर पे फिट है या नहीं फिट है। तो शुरू करते हैं पैडलेट से। तो पैडलेट से शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक विजुलाइज कराता हूँ कि कहाँ आप जोड़ेंगे कैसे इसको। जब आपने किसी ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप में गए होंगे या क्लासरूम में आपने किया होगा कि आप एक बोर्ड लगवाते हैं और अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि स्टिक नोट देते हैं सबको कि अपन कोई क्वेश्चन या कुछ अपनी फीलिंग लिखें उसके ऊपर, ये एक एक्टिविटी की। बाकी सब बच्चे स्टिक नोट को बोर्ड पे लगा देते हैं। या आपने डिस्कशन किया, मैंने पूछूं कि डिजिटल ट्रेनिंग टूल्स में आपने कौन कौन से टूल सीखे हैं, एक एक लर्निंग शेयर कीजिए मेरे साथ। एक बोर्ड लगा दिया है, आप सबको एक नोट है, आप सबको चिपकाना है, आपने चिपकाया। ये बोर्ड है, ये तो था ऑफलाइन वर्कशॉप्स में, ऑफलाइन क्लासरूम में यूज करते थे। इसी का डिजिटल वर्जन, अगर हम सोचें कि सबको कोलैबोरेटली थॉट्स को लेके आना है, सबके एक्सपीरियंस को मुझे लेके आना है ना, हम डिस्कशन चाहते हैं, जब हम इंटरेक्शन चाहते हैं, तो एक ऐसा ही टूल है पैडलेट, जो ना केवल आपको रिटर्न टेक्स्ट को लिए मौका दे रहा है, आप यहाँ पर वीडियो में शेयर कर सकते हैं, आप यहाँ लिंक शेयर कर सकते हैं, ऑडियो शेयर कर सकते हैं, मतलब जितने तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेसिव करने के जानते हैं वो सब यहाँ पे अलाउ है। तो ये एक आपकी इस तरह की वॉल बनने वाली है। तो अभी तो मैंने आपको इमेजिन करवाया एब्स्ट्रैक्ट में, तो आइए चलते हैं उसको रूबरू देखते हैं कि है क्या वो टूल। तो मुझे लगता होगा कि जैसे मैंने पैडलेट का इंट्रोडक्शन किया, आप लोग एक्साइटेड होंगे पैडलेट के बारे में जानने को कि वो क्या बाल है, क्या इंटरेस्टिंग चीज है ये, जिसपे हम क्लासरूम को बिल्कुल लाइव कर सकते हैं, जान डाल सकते हैं क्लासरूम में। इसके लिए मैं स्क्रीन को इसे स्टॉप कर रहा हूँ। Is there any issue, Vikas sir? जी मैं ये Yes. Yes, sir, it's visible. माय स्क्रीन विजिबल, राइट? मैं इसको मिनिमाइज करना चाह रहा था, राइट? अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, फाइन। yes, yes. यस। तो पैडलेट को शुरू करने के लिए एक खासियत ये है कि इस टूल के लिए कोई सॉफ्टवेयर आपको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये वेब बेस्ड टूल है। इस टूल के लिए सिंपल आप ब्राउजर में स्क्रीन में दिख रही होंगे, पैडलेट टाइप करेंगे तो जो पहला जो लिंक आएगा, जो 10 ग्राम बना है, ये लिंक हमारा, इसमें जाना है। तो पैडलेट साइन अप, पैडलेट लॉगिन, इस तरह के आएंगे, आप उस पैडलेट पे पहुंच जाएंगे। ये इसकी जो फर्स्ट डैशबोर्ड है, मैंने जैसे ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन अप को आपके लिए जैसे अधिकतर क्या करना होता है, आपको अपनी एंट्री देनी होती है, फोन नंबर देना होता है, ओटीपी देना होता है। यहाँ ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास गूगल अकाउंट,
माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, या अगर आप मैक यूज करते हो तो एप्पल का अकाउंट होगा, वो उसी के थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं उसी आईडी के। आपको फर्दर नो पासवर्ड बनाने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई कैसे पैडलेट तक पहुंचेंगे, padlet.com आप इन हो जाएंगे। साइन अप करने के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे, आप अपनी गूगल अकाउंट से यहाँ या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से इन कर सकते हैं। जब आप इन कर चुके हैं तो इस तरह का जो इस अभी आपको दिखाई दे रहा है ये इंटरफेस दिखाई देने वाला है। गूगल पे जो पिक लगा रखी है वो यहाँ पे आ गया। मैं गूगल आईडी विकास BSW gmail.com यूज करता हूँ, इसलिए ये विकास BSW यहाँ लिखा आ रहा है। यानी जो गूगल आईडी का आपका यूजर नेम होगा वही आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन होंगे ज्वाइन ए पैडलेट, मेक ए पैडलेट। तो अभी हम एक पैडलेट बना के देखते हैं, टास्क लेते हैं, फिर देख उसमें फिर आप मेरे लिए आपके एक असाइनमेंट भी है कि उसको आप लोगों ने कितना सीखा है, वो भी हम उसको अभी असेसमेंट कर रहे होंगे। मेक एक का जब पैडलेट क्रिएट करना है तो मेक ए पैडलेट पे मैंने क्लिक किया। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। हम एक बॉल, जिस बॉल की मैं बात कर रहा था उस तरह की एक विजिबल बॉल बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो ये उसका एग्जाम्पल है कि जिस तरह के आजकल डिजिटल कोर्स आप करते होंगे ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वो लोग सभी आजकल जो आप टूल यूज देख पाएंगे कि कौन सा टूल यूज करते हैं इंटरेक्शन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, तो आप पाएंगे वो यूज टूल होता है पैडलेट। ये पैडलेट यूज किया गया है। एक कोर्स है फ्रेमर स्पेस पर ऑनलाइन के लिए। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर वहाँ पे सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लास्ट में प्लस साइन है। तो ऐसे ही बोल, ऐसा ही पैडलेट हम खुद कैसे बना सकते हैं उस ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल था, जो आउटपुट होगा हमारा वो एक इस तरह का होगा। हम मल्टीपल बना सकते हैं टाइमलाइन के लिए। तो आइए मैं आपको उस ओर ले चलता हूँ। ये पैडलेट एक जो मैंने बनाया था उसका एग्जाम्पल है। जैसे ये लाइव यूट्यूब लाइव सेशन स्टेट के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हम टाइमलाइन जर्नी एक पैडलेट उसका बनाया हुआ है। एग्जाम्पल इसलिए दिखाए कि कुछ लोग अवेयर नहीं होंगे तो वो किस तरह का हम गोल बनाना चाह रहे हैं। तो नया पैडलेट बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो मेक ए पैडलेट पे हम शुरुआत जाएंगे। ये हम पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास मल्टीपल थीम आ जाएंगी। हम जो चूज करना चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। अगर हम कुछ क्लासरूम में, जैसे हम ये दिखाना चाहते हैं कि पहले मुगल आए, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, टाइमलाइन की बात करना चाहते हैं, तो टाइमलाइन का बहुत ही अच्छा यहाँ पे थीम दी हुई है। क्रोनोलॉजी दिखाना चाहते हैं जहां भी, वो हम इसके थ्रू दिखा सकते हैं। पर जो मैं पसंद करता हूँ सिंपल वॉल और ग्रिड ज्यादा यूज करता हूँ। आप लोग अपने पर्पज के हिसाब से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस एक बॉल क्रिएट कर रहा हूँ। कोई भी टाइम लाइन ही कर लेते हैं कि एक टास्क लेते हैं, हम एक डिजिटल टूल के लिए बना रहे हैं। तो जिसको भी लेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए नीचे सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं इस वाली स्क्रीन को अपने बिल्ड कर ले आता हूँ। अब जिस असली काम यहाँ शुरू होता है, तो सभी का फोकस चाहूंगा यहाँ पे कि अब मेरे साथ बने रहें कि हम कैसे कैसे करने जा रहे हैं। सबसे पहला टाइटल, हम क्या क्यों करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे सपोज एक टाइटल लेते हैं कि माई डिजिटल टूल्स, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया। हम अपने डिजिटल टूल्स के लिए पैडलेट बॉल बना रहे हैं। ये सब आपकी बॉल बन जाएगी और आप सब इस पे शेयर भी करेंगे मेरे साथ में। अब डिस्क्रिप्शन, जो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं AIF, जितने भी सेशन चल रहे हैं यहाँ पे हम सीख रहे हैं, हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो वहां पे हम इसका और भी जो आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। आइकन, अभी यहाँ पे कोई आइकन नहीं है, तो आइकन के लिए यहाँ पे मल्टीपल इमोजीज हैं जो आप व्हाट्सएप में यूज करते होंगे। इतने यहाँ पे हम आइकन ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम कुछ एजुकेशन जुड़ा हुआ आइकन, यहाँ एक बुक वगैरह होती है वो चुन लेते हैं, और जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा हम यहाँ चूज कर सकते हैं। अगर थोड़ा स्पीड तेज हो तो आप मुझे प्लीज रोक दीजिए। ये ले लेते हैं। अभी हमने टाइटल सबसे पहले बनाया, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन अपना जो हमें लिखना है लिख लिया हमने, आइकन चूज कर लिया। अब जो हम लोगों के साथ अपने सबके साथ शेयर करना है, वो एड्रेस यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। यानी आप अकेले इस पे काम नहीं करें, कोलैबोरेटिवली काम करने का टूल है। जिस जिसके साथ शेयर करूंगा वो सब रियल टाइम में
एक साथ इस पे वर्क कर सकते हैं। यानी मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, जो और दूसरे के जिनको मैंने ऐड किया है कोलैबोरेशन के लिए, वो लोग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उनको शेयर करने के लिए एड्रेस है। नेक्स्ट अपीयरेंस पे आते हैं हम। वॉलपेपर जैसे अभी आपको एक दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, इसको अगर हम चेंज करना है तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, सॉलिड कलर के, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर्स। तो चलो एक को हम एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो इन पिक्चर्स में से भी एक पिक्चर को एक्सप्लोर करके देखते हैं, क्या चूज करें। ये टाइमलाइन की बना रहे हैं तो हम बैलून, चलो ये होम बाई 7 मैंने चूज कर लिया। बैक जाएंगे, इसे हम चेंज कर सकते हैं, अगर मान लो पसंद नहीं आई दोबारा कोई चूज करनी है, उसे हम चूज करके बैक जाएंगे। सॉलिड जो भी हम यहाँ से मल्टीपल एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो फिट बैठे उसको रख सकते हैं। अभी नहीं, जब पूरा बन जाएगा पैडलेट उसके बाद भी एडिट करने का ऑप्शन है, तो घबराने चिंता की बात नहीं कि एक बार सेटिंग हमने कर ली फिर कैसे चेंज करेंगे, तो वो भी जानेंगे। अभी के लिए मैंने बताया कि एक हमने लिया है हमने। इसके बाद जो हम वॉलपेपर कलर स्कीम है, इसको यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो हम लिखेंगे उसके फ़ॉन्ट के यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनको हम ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है क्लासरूम मैनेजमेंट की, कि क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या करना होता है। मैं जैसे जूम के लिए भी पहले कई बताया जाता है कि क्लास से पहले वेटिंग रूम करवाना नहीं करवाना है, तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन है। तो एट्रीब्यूशन अगर इसे हम इनेबल कर देंगे तो ऑथर का नाम आएगा, तो अभी नहीं आएगा तो इसे जरूर करें। किसने कमेंट किया है कि जानना हमारे लिए जरूरी है, हमारे टीचर हमारे स्टूडेंट ने किन किन स्टूडेंट ने अपना रिप्लाई किया है, तो इसको हम इनेबल कर देंगे। अब क्या होगा, जब वो स्टूडेंट जो भी पोस्ट करेगा सबसे ऊपर उसका नाम के साथ आएगा। जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूं तो विकास, जो भी मैं नाम क्लास में मैंने अपनी जीमेल पे दे रखा है वो नाम शो होगा। नेक्स्ट, अब हम चाहते हैं कोलैबोरेशन। हाँ, तो यहाँ जो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है या किसी आपस में पीयर में एक दूसरे का रिव्यू कर सकें। अगर आप असेसमेंट देखते हैं तो आप देखते होंगे हम चाह रहे हैं कि एक दूसरे के जो लिखा हुआ है उस पर भी कमेंट करें, तो उसके लिए कमेंट को ऑन कर देंगे अगर हम ऐसा चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट ऑन कर देते हैं, यानी आप लोग जो भी टूल के बारे में लिखेंगे तो बाकी साथी उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट को मैंने ऑन कर इनेबल कर दिया है, तो एक दूसरे पे हम कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन। ये बहुत ही वाव मोमेंट यानी थोड़ा सा वो ज्यादा इंगेजिंग बनाता है। तो हम इसमें आप देखेंगे कि जो भी हमारे एक दूसरे के कमेंट आएंगे, जो लिखा आएगा, हम उसे लाइक कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं। तो मैं अधिकतर वोट वाले को चुनता हूं कि उसमें अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो +1 है ना, लाइक भी बढ़ा सकते हैं, जो आपको लेना है कोई सा भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए वोट ले लिया, तो जो आपको ऑब्जेक्टिव है या जैसे भी आप एक्सप्लोर ट्राई नया नया कुछ कुछ करना होता है डेली क्लासरूम में, तो हम यहाँ बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये अगर आपको चाहते हैं कि हमारी क्लासरूम के कमेंट हमें नहीं पता, थोड़ी अनसर्टेनिटी है, ऐसे कमेंट ना आ जाएं जो हम नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये फीचर ऑन कर सकते हो। मतलब आप जो कमेंट आएगा वो मॉडरेटर के पास है, वो जिसे अप्रूव करेगा वो ही शो होगा, विदाउट आपके अप्रूवल के वो शो नहीं होगा। तो ये फीचर तब ऑन करना है। पर जैसे मैं आप मेरे साथ सब मेरे साथी टीचर हैं, तो मुझे लगता है कि इसे मुझे ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप सब जैसी कमेंट करोगे रियल टाइम दिखाई देगा, तो मैं इसको इसलिए इनेबल नहीं कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो कि एक को मॉडरेटर के पास पहले आए और फिर इस पर दिखाई दें, तो जिससे इस तरह की कोई, तो आप इसे इनेबल कर देंगे। पर अभी के लिए मैं इसे डिसेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ ये पैडल जो मैं बनाऊंगा ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट आए तो मैं उसमें फिर मॉडरेट करने की जहमत ना हो, तुरंत आपके कमेंट रियल टाइम मुझे मिल जाए। पर ध्यान रखें ये क्लासरूम मैनेजमेंट में हमें हेल्प करेगा। हमारे फिल्टर प्रो कुछ इस तरह के वर्ड जो सॉफ्टवेयर कैच करता है जो यूज नहीं करने चाहिए हमें, तो वो अपना आप ही ऑटोमेटिकली ये इमोजी वगैरह में चेंज कर देता है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं, इनेबल करेंगे। लास्ट में एडवांस में आप देख रहे होंगे मैप ए डोमेन लिखा हुआ है। तो इसका मैप ए डोमेन मतलब जैसे अभी जो हमारा पैडल का लिंक बनेगा, तो उसमें जब लिंक बनता है तो आप देख रहे होंगे pedal.com विकास, ये ऊपर GIB ऐसे नाम आते हैं। पर अगर हम एक डोमेन ले लेंगे तो हमारा इंडिविजुअल बिलोंग अपना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे विक्रमशिला.com, AIF.com, इस तरह के भी ले सकते हैं। तो उसके लिए अलग इस पे आपके लिए कुछ वाई करना पड़ेगा, उस प्रोसेस बता रखा है, पर हमारे लिए अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी हमने सेटिंग में क्विक रिकॉल करा दूं मैं, हमारा हमने एक टाइटल लिया, डिस्क्रिप्शन लिखा, आइकन चूज किया, एड्रेस अगर मैं कोलैबोरेशन में चाह रहा हूं तो इस एड्रेस को अपने साथी जिसको मैं कोलैबोरेशन, जैसे मैं पूजा मैम से चाह रहा था सपोज, तो पूजा मैम को इसका लिंक शेयर करूंगा तो वो भी यहाँ से जुड़ जाती हैं और
रियल टाइम में एक साथ ही हम कोलैबोरेट कर सकते थे। वॉलपेपर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम, फॉन्ट, एट्रीब्यूशन, कमेंट्स को ऑन ऑफ करना, रिएक्शन चूज करना, और अप्रूवल हमें देना है अगर चाहिए तो हम कर सकते हैं। हम इसे मल्टीपल टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट करते ही हमारा पैडलेट रेडी होगा वर्क करने के लिए। चलते हैं फिर जादू करते हैं। हमारा रेडी है, स्टार्ट पोस्टिंग। देखिए तो आप देख रहे होंगे ये पहला लाइक पोस्ट रेडियो बटन ये मैंने पब्लिश किया। अब मुझे लगता है ये गलती से हो गया है ना, मुझे इसको हटाना है, मैंने इसे डिलीट कर दिया। नया मुझे ऐड करना है, तो कहाँ से ऐड करूंगा? लास्ट में आप नीचे देख रहे हो पिंक कलर का एक बटन घूम रहा है, राइट का निशान जाता है, ये प्लस का दिखाई दे रहा है। अगर वो आया रिमूव करा मैंने अभी उसे, मैं खुद पर्पजली ऐड करना चाह रहा हूँ, क्लिक करूंगा मैं, तो इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या करना चाह रहा हूं मैंने, हमारा टॉपिक है डिजिटल टूल के बारे में लिखना है। अगर आप डिजिटल टूल तो केवल लिखना नहीं है, मैं अपलोड कर सकता हूं, मेरे लैपटॉप में है उसका, मैं रियल अभी कैमरे से फोटो की अपना अपलोड कर सकता हूं यहाँ पे, जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ फोटो दिखाना चाहता हूँ, कोई लिंक शेयर करना चाहता हूँ, इमेज सर्च गूगल पे डायरेक्ट वहां से ले सकता हूँ, और भी मैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डर, लोकेशन। आप देखेंगे कि जितने पॉसिबल तरीके हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी ने शेयर करने के दिए हैं, वो सारे के सारे पैडलेट अलाउ करता है यूज करने के लिए। इससे अच्छा और क्या। तो अभी एक टूल जैसे अभी हम सीख रहे हैं पैडलेट को, तो मैंने उसके बारे में लिखा डिस्क्रिप्शन में, कोलैबोरेशन के लिए टूल है। कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने पब्लिश कर दिया। तो जिस तरह मेरा एक ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब आप लोगों को क्या करना होगा, नेक्स्ट प्लस पे जाएंगे, एक टूल होगा, जैसे मेरा दिखाई दे रहा है विकास शर्मा ने ये लिखा, आपका इस टूल पे दिखाई देगा कोलैबोरेशन में। तो इसमें सभी को एक एक टूल सब शेयर करेंगे। तो आप देखिए हमने टाइमलाइन की थीम चुनी थी, तो ये पहले ही आ रहा है, तो अगर हम नेक्स्ट लेंगे तो इससे नेक्स्ट वर्जन पे आएगा। पैलेट के बाद हम जानेंगे कोगल के बारे में। कोगल एक माइंड मैपिंग टूल होगा। इस तरह आप देख रहे हैं ये ऐड होता चला जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें हमें लग रहा है कि कुछ और ऐड करना है ना, वो कैसे ऐड करेंगे? कुछ सिंपल है, जिस पे भी आपको एडिट करना चाह रहे हो डबल क्लिक कर दोगे, ये आपके सामने जूम होके आ जाएगी उसकी विंडो इंटरफेस। इसमें जो आपको फिर दोबारा पिक्चर ऐड करना भूल गए थे, कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, कोई अगर ऐड टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। एक कोई भी पिक ले सकते हैं। मैं डाउनलोड में जाता हूँ, जहाँ भी आपके लैपटॉप में पिक्चर्स आप रखते हो, आप वहाँ उस एड्रेस पे जाएंगे, जो पिक्चर आप लेना चाह रहे हैं उस पिक्चर को चूज कर लेंगे। सपोज ये कोई पिक्चर यहाँ पड़ी हुई है, उसको मैं ओपन करता हूँ, अपडेट करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे आ गई है ना, कोई मैंने फोटो ले रखा था, हॉस्पिटल का डिस्क्रिप्शन है वो आ गया है। अब मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो कैसे डिलीट करूंगा? यहाँ पे जाऊंगा मैं, तो पूरा पैडलेट डिलीट हो जाएगा। डिलीट कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं। पैडलेट डिलीट हो गया, वो पैडलेट लिखेंगे डिजिटूल। कोई लिंक डालना है हमें, इसी पैडलेट का टूल लिंक ले लेता हूँ। तो लिंक करने के लिए करूँगा मैं, जो मेरा एड्रेस बार में है यहाँ से कॉपी किया मैंने इसको,
और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये अभी जो पैडलेट बन रहा है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वो लिंक आ चुका है, इसका सेम दिखाई दे रहा होगा। आप कोई भी लिंक आजकल ड्राइव पर आप मल्टीपल लिंक रखते हैं तो वहां पे उसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो भी इसमें हम डाल सकते हैं। वीडियो के लिए देखते हैं, नेक्स्ट बना लेता हूं मैं। विकास थ्री सर, डॉट, ये जो बीच पे प्लस प्लस के साइंस हैं, दैट इज यस, एनी यूज ऑफ देम? उनका कोई यूज है? ये इसके बैकग्राउंड में जो हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर है। नो नो सर, जो टाइमलाइन बना हुआ है। हाँ, ये थीम टाइमलाइन के लिए है ना, इसलिए इसमें इस थीम में ओके दिखाई दे रहे हैं। ये हर थीम में नहीं होंगे। टाइमलाइन को ब्रेक करने के लिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको इस बताने के लिए हम जो टीम्स आज की चूज की है वो टाइमलाइन के लिए ली है, इसलिए ऐसा है इसके अंदर। जैसे मैं एक वीडियो या यूट्यूब पे लिंक शेयर करना चाह रहा था, तो आपको अपना जाना पड़ेगा वहां से, कोई यूट्यूब चैनल कहीं से वो लिंक कॉपी करना होगा और वहां पेस्ट कर लेंगे। अपनी पुरानी स्किल को एनहांस करना, ग्रूम करना और नई स्किल सीखने के लिए रेडी रहना। अब हम हार के नहीं बैठ सकते कि नहीं, क्विट नहीं कर सकते हैं। आज का जो इतना चैलेंजिंग, हमने लिंक लिया, उसको हम यूट्यूब सर्च करने के आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, तो हम लिंक डालना चाह रहे हैं। लिंक पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पब्लिश करना ना, पब्लिश करेंगे यहाँ से। अभी वो 8% पूरा हो रहा है, ये आगे पब्लिश करते ही आप देखेंगे जो मैंने वीडियो को लिंक कॉपी किया है वो यहाँ पे वीडियो डिस्प्ले। आपको ये एक तरह से आपका पर्सनल वेबसाइट या ब्लॉग का जो डैशबोर्ड होता है उसका काम कर रहा है। तो आप इसमें लिंक डाल रहे हैं तो वो लाइव दिखाई दे रहे हैं। गूगल ड्राइव के कोई भी रिसोर्स डाल रहे हैं, पीपीटी वगैरह, वो यहाँ उसी तरह रन करेंगी जिस तरह वो आपके लैपटॉप में चलती हैं। वीडियो है, अगर मैं इस रन क्लिक करता हूँ तो वीडियो तो यूज कर सकते हैं इसमें हम। तो इसके बाद जैसे हमने टाइमलाइन का लिया था, हम इनको एडिट करने का ऑप्शन है, ट्रांसफर पोस्ट करनी है, कॉपी पोस्ट, एक्सपेंड करना है, कवर पे लगाना है, यानी ये सारे पोस्ट जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि ये वाली पोस्ट कवर पे जाए कि आज की जो है, तो मैं इसको कवर बना देता हूँ। डिलीट करना हम देख चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको डिलीट कर दिखाया था एक बार और। एडिट के यहाँ 3 ऑप्शन, 3 डॉट पे आप डिलीट कर सकते हो, नहीं तो और सिंपली उस पर जाके आप डबल क्लिक कर दीजिए। जूम विंडो आपके सामने आ जाएगी, उसमें आप टेक्स्ट को सबको जो चेंज करने हैं चेंज कर सकते हैं, लास्ट में अपडेट कर देंगे। तो इस तरह आपका पैडलेट बॉल तैयार हो जाएगी। आप शेयर कीजिए, आपको डिस्कशन थ्रेड छोड़ना है, आप यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं कि आप आज की लर्निंग शेयर कीजिए। जो भी आप क्वेश्चन देंगे बच्चे उस क्वेश्चन पे, स्टूडेंट जो है आपके अपने आंसर यहाँ पे लिख रहे होंगे, आपके पास आंसर पहुंच जाएंगे टेक्स्ट रूप में, रिकॉर्डिंग के रूप में, वीडियो के रूप में। अब चलते हैं हम, एक इस बॉल को आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उस बॉय आपको भी मैं चाहूंगा कि आप भी इस तरह से यहाँ पे कुछ अपने आंसर टूल के बारे में बता रहे हो। आज का टॉपिक है माय डिजिटल टूल। तो जो भी टूल आपने सीखा है रिसेंटली, उस टूल का आप प्लस पर जाएंगे, नाम लिखेंगे और उसके बारे में कुछ एक बात कि उस टूल ने आपको, प्रेजेंटेशन टूल, जो भी टूल्स आप एक लाइन में एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो करना। तो नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं हम। लास्ट में क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन रखा गया है, तो आप बिल्कुल बरी ना करें, जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको हम लेंगे लास्ट में। अब जो नेक्स्ट टूल है कोगल, अभी एक कोलाबोरेशन की वॉल मैंने आपके साथ शेयर की जिसपे हम लाइव इंटरेक्शन जब हमें जोड़ना हो तो हम यूज करेंगे, जहां सबके इंफॉर्मेशन, सबके इंटरेक्शन चाहते हो, तो उसके लिए पैडलेट था। पर जब भी हमें कुछ क्लासरूम में पढ़ाना है तो हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, हम बहुत ज्यादा ब्रेन स्ट्रोमिंग करते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग, प्लानिंग, तो
उसके लिए हम कभी कभी इंडिविजुअल करते हैं, कभी कोलाबोरेशन में करनी होती है। तो उसके लिए ये जो टूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही ऐप्ट टूल है। जनरली जो हम माइंड मैपिंग करते हैं, तो अधिकतर माइंड मैपिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास जो डाटा होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे आप बायोलॉजी में देखते होंगे, एक रूट से एक रूट एक निकलती रहती हैं, या फिर कंटिनेंट, कंटिनेंट में कंट्री, कंट्री में स्टेट, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक, ज्योग्राफी। मैथ में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद आपके आ जाएंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स के फिर नेचुरल नंबर। तो जहां भी आपको ये कनेक्शन आपस में स्टेब्लिश करना है, वहां पे माइंड मैपिंग आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और जितने भी एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये सब वेब बेस्ड हैं और फ्री हैं, ओपन सोर्स में है। इनके पेड वर्जन भी हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ तो उसमें और ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, पर बेसिक वर्जन में भी आप बेसिक काम सारे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ फीचर चाहिए हो तो हमें उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा, नो डाउट, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए यहाँ पे रखे भी गए आपके लिए। तो इनमें से हम आज कोगल को यहाँ पे जानने वाले हैं। मैं आपको कोगल पे इंट्रोडक्शन ले चलता हूँ। गूगल पे आपको करने के लिए, जैसे मैंने पैडलेट के लिए बताया था, उसके लिए भी आपको कहीं साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप google.it टाइप करोगे, आपके सामने साइन अप के जो आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के अकाउंट हैं, उनके उन्हीं अकाउंट से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आपने साइन अप कर लोगे, ऑलरेडी जो आपके अकाउंट बने हुए हैं उसी पासवर्ड से, जीमेल वाले से, गूगल वाले से, तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब माइंड मैप जब शुरू करना है आपको, तो क्रिएट डायग्राम, अपग्रेड नाउ। तो अपग्रेड नाउ उनके लिए है जिनको मल्टी और एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए आपको और ज्यादा अलाउ करते हैं। पर बेसिक फीचर हमारा जो हमारा बेसिक पर्पज है माइंड मैपिंग का, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएशन करना, कोलैबोरेशन का, वो पूरा करता है। तो नया डायग्राम क्रिएट करना है तो मैंने क्रिएट नाउ पे यहाँ प्लस पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे आज एग्जाम्पल ले रहे थे हम, डिजिटल टूल, तो जो सेंटर में होगा उसको टेक्स्ट में यहाँ पे लिख सकते हो, कोई लिंक यहाँ आप ऐड कर सकते हो, उसकी इमेज यहाँ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन है। अब डिजिटल टूल बहुत तरह के होते हैं ना, कुछ ऑडियो बेस होते हैं, कुछ टेक्स्ट बेस होते हैं, कुछ वीडियो बेस होते हैं। तो उसको हम कैसे इसमें दिखाएंगे माइंड मैप में, तो मैंने यहाँ लिखा ऑडियो। अब ऑडियो में भी तो कई सारे होते हैं, और आगे जरूरत पड़ेगी तो मुझे नया कुछ जोड़ना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा प्लस पे, तो अगला थ्रेड चला जा रहा है। ऑडियो में मेरे माइंड में कुछ आया, जैसे मैंने लिखा ओडासिटी। ओडासिटी एक ओपन सोर्स में ऑडियो का है, आप लोगों ने शायद यूज भी किया हो। इसी तरह मैं नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ ऑडियो के एग्जाम्पल जितने भी होंगे मैं यहाँ ऐड कर चला जाऊंगा, यहाँ प्लस करूंगा तो इसी में और आगे चला जाएगा। और मुझे इसी में प्लस करना है यहाँ पे, तो ब्रांच बनती चली जाएगी। जैसे ऑडियो, इसके नेक्स्ट और एग्जाम्पल जोड़ना है मुझे ओडासिटी, तो और कोई एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे एक नया ही थ्रेड लेना है, तो आप देख रहे हो ना, यहाँ थ्रेड ऐड करना है, तो मैं यहाँ वाले प्लस को यूज कर रहा हूँ। न्यू मुझे थ्रेड चाहिए, मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस प्लस पे जाऊंगा। गॉट इट। तो अब मुझे, मैंने ऑडियो टूल को यहाँ पे मैं दिखाए, वीडियो टूल को लिखना चाह रहा हूँ। अब वीडियो टूल के अंदर भी मेरे बहुत सारे वीडियो टूल हैं, तो ये जो प्लस है इस पर गया मैंने लिखा बंडर शेयर। बंडर शेयर एक अच्छा वीडियो एडिटिंग टूल है। अब मैं सोच रहा हूँ कि और एक और ऐड करना है, तो कहाँ जाना है, बैक जाना है, प्लस है इस पे जाएंगे, पावर डायरेक्टर। तो इस तरह आप ऐड कर चलो। आपको लग रहा है कि ये जो ये वाला और मल्टीपल हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हटाना कैसे है ना, कुछ गलती से ज्यादा ऐड हो गया, नहीं नहीं, ये जम नहीं रही बात, जम नहीं रही है बात, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उस पर राइट क्लिक करोगे, इस तरह ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपके कई ऑप्शंस हैं, प्लस का है, इसमें डिलीट करने का ऑप्शन भी आएगा, ड्रैग जूम करने का है। राइट क्लिक करेंगे, अब पहले डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है, ये जो क्रॉस का निशान है, डिलीट ब्रांच करने का ऑप्शन। क्या करना है, उस पर जाना है जो डिलीट करना चाह रहे हो, राइट क्लिक करना है, ये जो सर्किल आ जाएगा, जो इसमें हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, ड्रैग करना। तो अभी हम डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट कर सकते हो आप। आपको लग रहा है कि ये वीडियो को कुछ कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, उसके ऊपर जाएंगे, ये पूरा एक साथ ड्रैग हो रहा है, साइड में करना है, कितना बड़ा बना सकते हैं रियल टाइम में,
वो ब्रांच को हटाना है तो उस पर जितना आपके माइंड में क्रिएटिविटी है वहां आप उसे ऐड कर सकते हैं, आप उनको लिंक कर सकते हैं। तो पूरा एक साथ जा रहा है तो अभी ये एक लेना थ्रेड को, तो थ्रेड पर आना पड़ेगा। अब एजाज ये पूरा एक साथ मूव कर रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ केवल एक ब्रांच ही मूव हो, तो उसके ऊपर स्क्रॉल करते हुए आना पड़ेगा। अब वो अभी नहीं आई, वो देखिए जैसे अब वो ब्रांच मूव हो जाएंगे जहां आप चाह रहे हैं। जो लिखा हुआ है, जो पावर डायरेक्टर लिखा हुआ है, मैं इसको इधर लाना चाह रहा हूँ, इधर ला सकता, जिस तरह से आपको आइडिया आते जाते हैं उस तरह से आप कस्टमाइज अपने माइंड मैप को कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ हमने ऑडियो के बारे में लिखा, ये बंडर से गलत हो गया है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हमें हटा देते हैं यहाँ से। हटाने के लिए आपको बताया मैंने, उस पर जाके जहाँ भी ये जा रहा है थ्रेड पूरा ब्रांच क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक ले जाके, पर अभी डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आया है। दोबारा जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करने का ऑप्शन आया है, वो हट गया। इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको हटाना है, ये भी रिमूव हो गया। ये लग रहा है कि सही जगह पहुंचा देते हैं इसकी से। हटा देते हैं। इस तरह प्रैक्टिस जितनी आप करते रहेंगे उतनी आपकी मास्टरी इन टूल्स पे होती चली जाएगी। वेब बिल्डिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए कोई टूल हम ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया नई ब्रांच ऐड कर, ये इसकी ब्रांच है, फर्दर इसमें हमको करना है तो यहाँ प्लस में जाएंगे, मतलब जूम। अब जूम के साथ आपका गूगल मीट यूज करना है तो जी मीट। तो क्लासरूम में आप काफी इंगेजिंग, और इसमें भी जो फीचर है जो पैडलेट में था सेम फीचर है। आपको लगता है कि हम मिलके कोलैबोरेटली कुछ माइंड मैप बनाएं, प्लानिंग करें, है ना, तो उसके लिए आपको सिंपली ये 3 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, इसको डाउन कर देता हूँ। वर्क विद अदर्स, प्रेजेंट द कोगल पब्लिक डायग्राम में शेयर को कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इनवाइट पीपल टू ज्वाइन दिस कोगल। तो यहाँ प्लस पे जब मैं करूंगा तो यहाँ पे मैं उसको उसका यूजर नेम या फिर उसकी ईमेल आईडी में पता होगी, यहाँ लिखूंगा, सेंड कर दूंगा। तो अब हम दोनों एक साथ रियल टाइम में कोलाबोरेशन में यहाँ पे माइंड मैप अपना तैयार कर सकते हैं, अपने क्लास की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने क्लास के नोट्स जो हमें बच्चों को समझाने होते हैं, माइंड मैप उसका बहुत ही इजी टूल होता है एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी चीजें कनेक्टेड होती हैं आपस में, तो हम यहाँ पे उसे कर सकते हैं। तो ये तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज्यादा इस पे आपकी मास्टरी होती चली जाएगी। कुछ कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं आप उसमें डाल सकते हैं, या पर्सनली मैं विकास शर्मा एजुकेशन से इंस्टा फेसबुक यूट्यूब अवेलेबल हूँ, वहां पूछ सकते हैं। अभी माइंड में कुछ क्विक क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए लास्ट में अब आप, मैं चाहूंगा आपको क्वेश्चन कुछ एड्रेस कर पाऊँ जो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है उसमें, प्लीज। आप चैट बॉक्स का यूज करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख कर छोड़ सकते हैं, उन क्वेश्चंस में कोशिश करेंगे हम अभी रिप्लाई करने की, तो बाद में भी हम रिप्लाई, ये लर्निंग ऐसे ही होती है, करेंगे। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आपके साथ बाद में शेयर कर दी जाएगी। तो मेरे पास आपके लिए अभी क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे। एक लास्ट चीज और है, पेडलेट के बारे में मैंने आपको बताया, गूगल के बारे में आपको बताया, आखिरी में डिजिटल टूल का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। आजकल टूल ही इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वो आपके लिए काम का है या नहीं है, कोई तो इंडिकेटर बनाए, कोई तो गाइडलाइन हो, तो आपके साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ। कंसिडरिंग टू इवेल्युएट डिजिटल टूल्स, तो सबसे पहले यूजिबिलिटी देखनी जरूरी है कि जिस मेरे स्टूडेंट्स को वो इजीली यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आज के टूल थे पैडलेट, तो आप कोलैबोरेशन के लिए या माइंड मैपिंग के लिए, तो आपको लगता है तो आप पहले यूजिबिलिटी पे फिर बैठिए, यस और नो। अगर नो है तो यही बात खत्म होगी, यस है अगले पे चलते हैं। यूजफुल,
यूजफुल जो लर्निंग आउटकम, जो अपनी क्लासरूम में मैथ पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, जो लर्निंग आउटकम ऑलरेडी है, उन लर्निंग आउटकम को मैच करने के लिए काम में आ रहे हैं क्या? जैसे मुझे कोई अपनी बायोलॉजी मैथ का मेरा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उस लर्निंग आउटकम को तो पूरा करना है ना। हमारा पर्पज पैडलेट या गूगल बच्चों को सिखाना नहीं था, हमारा पर्पज टेक्नोलॉजी उसे एनेबल कर रही है, हेल्प कर रही है, उसके लिए यूजफुल है। तो अगर यस है तो और आगे बढ़ते हैं। डिजायरेबल, बच्चों को है ना कुछ अलग अलग तरीके आने चाहिए, नई नई एक्टिविटी कराते हैं, अच्छा लगना चाहिए। तो वो एस्थेटिक सेंस है कि पैडलेट में आप देख रहे थे कितना एक अपीलिंग हो रही थी, तो बच्चे खुद ही कमेंट करने को मन करेगा उनको कि मुझे कमेंट करूं। या रोज हम बोर्ड पे माइंड मैपिंग करते हैं, आज टूल पे माइंड मैपिंग कर रहे हैं, तो अपना आप अपील आएगी, हाँ हमें इसमें करना चाहिए। नेक्स्ट, इजीली उनका सीखना, हमें पता ही नहीं कैसे यूज करें, कोई दिक्कत आ रही है, तो दोनों जो टूल मैंने आपके साथ शेयर किया, पैडलेट भी और कोगल भी, आप देखेंगे इनके यूट्यूब पे या इनके अपने ट्यूटोरियल हैं, जो हर चीज जो आपके डाउट होंगे एफएक्यू बने हुए हैं, इजीली मिल जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होगी, आप रियल टाइम में उनके चैट बॉक्स चलते हैं सॉफ्टवेयर द्वारा, तो आप डालेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, फाइंडेबल, आपके डाउट को सोल्व, एक बार कोई प्रोडक्ट आया आपको ले लिया, आपने यूज कर रहे हो, पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताने वाला तो होना चाहिए ना उसको। तो इस ऐसा टूल होने चाहिए जो आप डिजिटली यूज कर रहे हो, जो फाइंडेबल हो, एक्सेसिबल, मतलब टूल है, बहुत अच्छा भी है, फीचर अच्छे लग रहे हैं, यूजेबल भी लगा, यूजफुल भी लग रहा है, डिजायरेबल भी है, फाइंडेबल भी है, तो कॉस्टली बहुत ज्यादा है। सपोज मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूँ और मैं पावर डायरेक्टर यूज करना जा रहा हूँ, और पावर डायरेक्टर अगर मैं लैपटॉप यूज करता हूँ तो मुझे वो कॉस्ट करता है। एडोब है ना, अपर मैं मेरे लिए कंस्टेंट आ गया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ढूंढना, ओपन सोर्स चाहिए था। तो ये भी आपका बजट कितना है, तो एक ये भी एक लिमिट है कि वो उस क्राइटेरिया फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो डिजिटल उसमें देख लिए टूल के आपकी लिमिट में है या नहीं, तभी वो अच्छा टूल है। क्रेडिबल, बनाया टूल किसने बनाया, ये नहीं उस आपकी, क्योंकि जब एक टूल बनता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ईमेल आईडी शेयर करते हैं, नाम शेयर करते हैं, अपनी पिक शेयर करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, वो क्रेडिबल होना चाहिए। कि जो आप, जो होता है ना स्टार्टिंग में टर्म्स एंड कंडीशन, भले ही उसे कोई पढ़ता नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें अलाउ नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यस 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 फिनिश, इस तरह हम अपने जाते हैं। तो उसमें लिखा होता है, पर क्रेडिबल पे आप, जैसे गूगल है ना, तो गूगल पे हमें थोड़ी सी बिलीफ है कि वो हमारे मिस यूज नहीं करेगा। तो इस तरह के टूल की क्रेडिबिलिटी भी जरूरी है, कहां से आ रहे हैं टूल को। वैल्यूएबल, जो भी आपके फॉर्मेट है, प्लेटफॉर्म है, आपने बना लिए, पर जैसे अभी कुछ पैडलेट बनाया, तो हमें उसे पीडीएफ में चाहिए, पीपीटी में चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन में चाहिए होता है। एक्सपोर्ट कितनी जगह कर सकते हो उसका, केवल लिमिट तो नहीं है कि केवल इसी तरह यूज हो सकता है वो, है ना। आपको माइंड में बनाया आपने, आप इसको मल्टीपल तरह से यूज करना चाह रहे हो ना, पीपीटी में यूज करना चाह रहे हो, अपनी वीडियो में यूज करना चाह रहे हो, तो जेपीजी चाहिए आपको, तो मल्टी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो सकता है। तो आप पाएंगे जो आज दोनों टूल मैंने आपको शेयर किए हैं, उनके अंदर ये आप खुद कैरेक्टरिस्टिक पता लगाना कि वो कहाँ कहाँ कितने मल्टीपल मोड में एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, कोगल भी। तो अगर इन ये क्राइटेरिया है जिससे आप डिजिटल टूल्स के जांच सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आपके लिए वो ऑप्टिमम है या नहीं है। शायद आपको अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में, कि ये क्राइटेरिया जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वैल्यूबल है या नहीं है। तो आज के सेशन में आपके साथ जो मैं शेयर करना चाह रहा था, मैं आपके साथ शेयर अभी मैंने किया, आपसे सुनना चाहूंगा चैट बॉक्स में अपने डाउट, अपना रिफ्लेक्शन। लास्ट में ना चेक इन, तो जैसे मैं चेक इन किया था तो आप एक्टिविटी कराई थी चेकआउट, तो मैं चेकआउट करना चाह रहा हूँ। आप अपनी अभी का फील कर रहे हैं आफ्टर द सेशन, कूल, एक्साइटेड, एनरिच, एम्पावर, जो भी आपकी फीलिंग है वन वर्ल्ड में, चैट बॉक्स में वो जरूर छोड़ के जाएं, वो हमें हेल्प करेगी जानने के लिए। कुछ अकवर्ड फीलिंग है वो भी शेयर करें, उसके लिए मैं ओपन हूँ, आप उससे भी शेयर कर सकते हैं कि नॉट गुड बैड, जो भी आपकी फीलिंग है प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू Thank you पूजा so मैम। much, Vikas sir. Thank you so much. It was really informative. We have really got some of the learning and takeaway. Mini ma'am, thank you so much. Mini ma'am is saying it was a brilliant session and very informative session. We are getting praised in our chat box. Thank you for so much. कोई भी learning किसी को भी informative तब लगती है जब वो इंसान खुद एक learning scale रखता है. And I guess whosoever participants, they have joined us today, they're all good learners, and that is why we are all together here to improve our learning day by day. So thank you so much. Thank you, Manju ma'am. Thank you so much. Manju ma'am is saying, Kasa, it's very interesting and informative session. Pranjali ji is saying, excellent session. Thank you so much, dear audience. So we'll be keep on coming
Altogether, again, we are still planning with lot many other technical tool webinars, right? So we'll be continuing tomorrow once again with something new and with new learning as well, right? So do join us tomorrow as well from 5 to 6, same PMI, same password and same link, same time on AIF stage webinar. So on behalf of AIF platform, I'm really thanking to you as well, Vikas sir. Thank you so much. Thank you. that you have shared your knowledge. It was a really great session. Thank you so much. Thank Thank you, you, dear Pooja. audience. Thank you, AIF, to give me opportunity. Thanks. Thank you. Thank you, sir. So thank you, dear audience. We have circulated the certificate link in the chat box. I hope all of you have got it. If anybody wants to say anything, they can surely unmute themselves and can speak. I have just cleared up the option of unmuting. Anybody, any participant want to speak up or having any question can surely ask. I guess it was all clear. So thank you once again, everyone. See you tomorrow, 5 o'clock. Thank you, Aradhana ma'am. Thank you so much. All right, audience, we'll be taking your leave. We'll be taking your leave after you, as we are the hosts. Thank you so much once again.